Look at question number 12, which is very important question. What is given in this question? ABC is a triangle drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC, into which the BC is divided at the point of contact D, are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the length of AB and AC. क्या दिया हुआ है? We have given a triangle which is circumscribing a circle, ठीक है, and touching the circle here BC पर कहाँ टच कर रहा है? At point D, ठीक है ना, which BC is divided by the point of contact D. BC is divided by the point of contact D. Same way, circle is touching AB at E and AC at F. Clear? And we have given that BC is dividing, D is dividing the circle into two parts, BD and DC, and their lengths are 8 centimeter and 6 centimeter. We have to find the length of AB and AC. Now again same result will be used. B is an external point and two tangents, you can see BD and BE are two tangents, so their lengths will be same. If it is 8, it will also be 8. Similarly, C is an external point, two tangents are drawn from this point. If it is 6, it will also be 6. We will assume this as x centimeter. If it will be x, it will also be x, because these two tangents are from the same external point A. Clear? Now your figure is complete, and one construction we will do. We will join OC, OA, OB and OE, OF. Clear? Same I have mentioned here. Let the circle touches AB and AC at E and F respectively. Then we have joined. After that, all these things I explained you. Now, can you write the area of this triangle ABC? Can you write? Here I have made figure again because it was looking little bit messy, so I have made here, drawn here again. So can we write area of triangle this ABC as area of triangle BOC plus area of triangle AOB plus area of triangle AOC? We can write it na. So same we have written here, area of triangle ABC equal to area of triangle OAB plus BOC plus COA. Clear? Now we can find area of triangle ABC by using Heron's formula, which you have studied in class 9th. What was that? S into S minus A into S minus B into S minus C. Why we have applied this? Because we have all the sides of the triangle. आपके पास ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स हैं. ये देखिए, ये 14 है, ये साइड 8 प्लस एक्स है और ये वाली साइड 6 प्लस एक्स है. तो जब भी ट्राइंगल की सब साइड्स आपके पास होती हैं तो आप हीरोन्स फार्मूला ही लगाते हैं और इनको साइड्स को हम नेम देते हैं ABC. आपको ध्यान होगा, आपने क्लास 9th में चैप्टर 12 में किया था. तो यहाँ से S क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बाई 2. अभी मैंने आपको बताया ABC क्या होती है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. इसीलिए मैंने लिख दिया AB प्लस BC प्लस CA बाई 2. अब मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं. AB क्या है? 8 प्लस एक्स. BC क्या है? 14. और AC क्या है? 6 प्लस एक्स बाई 2. ऑन सिंप्लीफाइंग आई गॉट S एज 14 प्लस एक्स. अब मैंने फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, S की जगह पर 14 प्लस एक्स, S 14 प्लस एक्स, A 8 प्लस एक्स है तो माइनस है, इसीलिए दोनों के साइन चेंज हो गए. इसी तरह से 14 प्लस एक्स, B
ये 14 है, -14, देन 14 + x, और थर्ड साइड क्या 6 + x, तो -6 में सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया 48x, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया मैंने बेटा, इंटू 14 + x। अब हम ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड करेंगे। अब इसमें क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्यों ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसलिए रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, तो परपेंडिकुलर होगा। तो और वैसे भी आपको एक ही साइड दी हुई है, आपके पास OA OB नहीं है, तो इसमें हम इस ट्राइंगल का एरिया वी विल फाइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस, बेस क्या है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आता है वो बेस है, तो बेस क्या हो गया 8 + x, और हाइट क्या है, ये OE है। OE क्या है, रेडियस है, रेडियस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यही चीज़ मैंने लिख दी, हाफ 8 + x इंटू 4, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आ गया। अब इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC फाइंड आउट करेंगे। अगेन वी विल अप्लाई सेम फार्मूला। अब बेस क्या है 14 और हाइट क्या है 4, सेम रेडियस, ये देखिए हाफ 14 इंटू 4, देन वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। नाउ यू गॉट ऑल द areas of the triangles which you have mentioned in equation 3. Just you have to put the values of all the areas, आपने पुट करनी है, तो ये मैंने पुट कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका ये आया था 48x इंटू 14 + x रूट, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ गया, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, और थर्ड OCA। सॉल्व कर दिया, ऐड किया, आपके पास ये आ गया 4 कॉमन आ गया, 14 + x आ गया। नाउ टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन, तो क्या करते हैं हम, स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दी। इसमें यहाँ स्क्वेयरिंग की तो ये रूट हट गया, यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, 14 + x से 14 + x कट हो गया, सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट x7, x7 आ गया तो आपके पास AB आ जाएगा और AC आ जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, very important question, all questions of this exercise are important। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्या है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जिसके अंदर एक सर्कल है। क्वेश्चन कहता है इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स, जो सेंटर पर ऑपोजिट एंगल है। अब देखिए जैसे ये एंगल है, ये सेंटर पर है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा। AD के ऑपोजिट साइड BC है ना, तो इनका ऑपोजिट एंगल ये और ये होंगे ना, तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर प्रूव करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180। कंस्ट्रक्शन किया इसमें, ज्वाइन OS OP OQ OR, ऑल आर रेडियस एंड perpendicular to the tangent at the point of contact, so all will be perpendicular. Now we will consider triangle AOP and triangle AOS। इसमें देखिए AP AS के इक्वल होगा, सेम वही रिजल्ट, ए से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं AP और AS, तो दोनों इक्वल होंगी। OA कॉमन, OP इक्वल टू OS रेडियस, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई SSS कॉन्ग्रुएंट से, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, देन एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो गए। आफ्टर दैट वी विल यूज़ दिस कंप्लीट एंगल सम। अगर आप इन सारे एंगल्स को ऐड कर दें, आपको कंप्लीट सर्कल मिल रहा है, सो देयरफॉर द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स 1 to 8 इट विल बी 360 डिग्री। तो यही चीज़ मैंने अप्लाई की है।
क्योंकि मुझे चाहिए एंगल ए ओ डी, इट विल बी फॉर्म्ड बाय 2 and 8 एंड एंगल बी ओ सी वो किससे बन रहा है 4 और 5 से। तो मैं लाइकवाइज चेंजिंग करूँगी कि मैं यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल 2 कर दूँगी, एंगल 3 की जगह एंगल 4, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया इक्वल है। 6 की जगह 5 कर देंगे और इसी तरह से 7 की जगह 8 कर देंगे। सो यू विल गेट ईच ऑफ द एंगल ट्वाइस, 2 will be common. So you will get angle 2 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 8 180 degree. आ गया. Then we will combine 2 and 8, 4 and 5. So your result will be proved. So your chapter will be completed now beta, and tomorrow as you have holiday, so day after tomorrow I will start your next chapter construction. You will complete this chapter by tomorrow.